Hello friends, how are you? Namaste. Welcome to Karma in a Cup. This is the second episode, and I'm sorry, this is the third episode. Lost track of date and time and episodes. This is a wonderful episode nonetheless. We are going to talk about spices. So spices, something that kind of enhances the taste, increases the salivary secretions. It moistens the food in our gut so that we are able to digest it better. It's an interesting thing. There are variety of spices, a variety of cultures, variety of cuisines using the spices in so many different ways. My journey of spices started with chai, wherein the masala chai remains my all-time favorite. But um, there's another connotation of spices that we started with the Spice Chronicles with RMG. That's a wonderful trail of spices in itself. But today we are going to a different context altogether. These are spices. We would understand how spices would help in our sun sign, moon sign. Us, who's going to share her immense knowledge of astrology with us in terms of spices. Welcome so much, Dr. Richa. I was so looking forward to today's live. So Thank you so much. excited to know what is it? Matlab, how can so I always wanted to understand that is there a way to find out how a person behaves, what the way we behave, our attitude that we have, is that also related to when we were born, or is that related to how we eat, what we eat? So this is completely an interesting area. I'll tell you, Dr. Richa, something very interesting. When I was thinking about that, I've been an HR person throughout my life. So I was always fascinated to kind of understand people, why they behave in certain situations, the way they behave. So I was thinking that, about 20 years back, while I was learning typing and shorthand, I used to help my mom in her shop by taking up project works of typing. Okay. So there was this gentleman who used to come, and he used to give us some typing job work that we would do. Now I always had a fight with him because I always thought that there is a certain way to type. There are certain Technique, formats that techniques one format. should, Yeah. yeah, one should be following. But today we understand that, using any typeset, any font, it doesn't matter. But as a student, what was being taught to me was the truth for me, right? So I would say that this is right, I will go with the right, this is wrong, I won't go ahead with it. Today also, when people ask me that, green tea pी ले वजन कम हो जाएगा, I can't say yes, because again, that's Yeah. not true. Yeah. So the time gap between both the instances is about 20-25 years, but still the thought process to stick with what is right remains so. So this is kind of an attitude or behavior that one is ingrained with. So I was very interested in knowing from you. That is why I was looking forward to this Yes. session, that why so? Is it because of the eating habits that we have? Is it because of certain use of spices? So everyone would like, so somebody would prefer sour, somebody would prefer bitter, somebody would prefer sweet. We understand that from Ayurvedic perspective. Your body type tells you what to eat, what not to eat, what should be your preference. So your body kind of gives you signals that this is the time to eat that. But astrology also related with it, matlab just wow. Yeah, So we would like, Prerna, जो आपने अभी एक बात बोली
कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको खाना चाहिए, आयुर्वेदा ये कहता है ना। ये कहता है, राइट। तो आपकी बॉडी टाइप कैसे बनती है? हाँ, एग्जैक्टली, बाय बर्थ, या इट By इज birth, डिसाइडेड, या by birth, and that body type is given by the planets. yes, yeah, we can say that because everything is energy, this Yeah, cosmic energy that yeah, creates us. yeah. Yes, So basically, and as we discussed in our previous episode, कि ये सारे के सारे जो ग्रह हैं वो हमारे पांचों तत्वों से जुड़े हुए हैं। We जुड़े, already talked बिल्कुल, about it. तो अब क्या है yes, कि हमारी बॉडी टाइप ही डिसाइड होती है हमारी राशि से, हमारी लग्न से, हमारे प्लैनेट्स के प्लेसमेंट से। absolutely, सो right. मतलब देखिए, ज्योतिष को आप अपने जीवन के किसी भी पक्ष से अलग कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो आप वही होते हैं जो आपको इन पांच तत्वों के मेल ने बनाया है। एग्जैक्टली, सो प्लैनेट्स को अलग करके कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे, बिल्कुल। और वही इम्बैलेंस है। अगर हमने जिस तरीके के हम हैं वैसे ही रहने पर ध्यान नहीं दिया और हमने अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति चेंज कर दी, तो इम्बैलेंस है, हम वहीं से बीमार होना शुरू होंगे। कुछ ना कुछ खराबी हमारे शरीर में, दिलो दिमाग में होने लगेगी। उसी तरीके से जो आप कह रहे हैं, वो भी प्लैनेट्स की एनर्जी को अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट्स इट। और राइट, सो दैट इज व्हाई वी आर हियर। नो, और जहां तक बात है कि मतलब देखिए, इस प्रकृति का, इस नेचर का, ईच एंड एवरी फिनोमेना इज बेसिकली गाइडेड और गार्डेड बाय सन। यस, जितनी भी आपकी हर्ब्स हैं, जितनी भी आपकी जो आप कहते हैं ना जड़ी बूटियां हैं, अनाज है, ये सब कौन प्रोटेक्ट करता है? सब क्रिएटर सन है। सूर्य से ही गर्मी होती है, उससे भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं, पर कहीं ना कहीं मेन क्रिएटर इज सन। Absolutely, the most powerful energy. Powerful and the most powerful energy of the cosmos is sun. Sun, and right. And sun is the king in planets hierarchy also. Right. तो जब जो राजा है हमारे एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का, वही आपकी प्रकृति का भी राजा है। एग्जैक्टली, अगर तो सन के हिसाब से हम नहीं हो सकती, अलग हो ही नहीं सकती। प्रकृति और मिली हुई है, बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। लेकिन हैरानी की बात है कि हम ये नॉलेज जो है खो चुके हैं। सो हम कोशिश करेंगे, कर्मा इन अ कप हमारी जर्नी यही है, उस नॉलेज को वापस लाने की, लोगों तक पहुंचाने की। So very interesting. I am so excited to know you talked about moon signs. So sun signs तो सबने पढ़े हैं, मुझे भी याद है कॉलेज में हम लोग मैच करते थे, इस लड़के से मिलता है कि नहीं, आई एम अ कैंसर, आई शुड गो इन फॉर व्हाट, स्कॉर्पियोज, राइट। बट मून साइंस, moon signs, we would like to know more about moon signs. देखिए क्या है कि सूर्य जो है, जो सन साइन, जो हम अपने कॉलेज डेज में कॉफी शॉप में और सब जगह डिस्कस करते हैं, दैट इज सन साइन। सुबह उठ के न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैट इज सन साइन। अब वो क्या है कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है। ओके, ठीक है। देयर आर 12 zodiac signs and there are 12 months in a calendar. Months, right. So एक महीना सूर्य एक राशि में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति उस एक महीने में पैदा है, जैसे कि 14 जनवरी से लेकर और लगभग 15 मार्च तक, 15-16 फरवरी तक, जब सूर्य की मकर संक्रांति हम मनाते हैं, तब जो लोग पैदा हुए, यानी वो सब सन साइन के हिसाब से कैप्रिकॉर्न्स हैं। राइट, ठीक है, ठीक है, जो भी है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग इस दौरान 1 महीने में पैदा हुए होंगे, उन सबका फेट एक जैसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल।
कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं थोड़े बहुत। हाँ, थोड़े किसी बहुत। में कुछ पार्ट मिलेगा, किसी में कुछ पार्ट मिलेगा, किसी में कुछ, नॉट एब्सोल्युटली, बट या। Absolutely. नाउ अंडरस्टैंड अबाउट मून. Moon remains in a sign for 2.5 days. Oh, okay. वो उतना टाइम उसको सर्कल करने में लगता है. जी Is that हाँ, so? केवल 2.5 Okay. दिन. जिस सर्किल को पूरा करने में सूर्य को 1 महीना लगता है, शनि को 28 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं, चंद्रमा को उसको पूरा करने में 2.5 दिन लगता है. और 2.5 दिन में भी वो 4 चरण जो नक्षत्रों के होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको क्रॉस करता है. So astrology, Hindu Vedic astrology is based on that, you know. So I think a person born within three minutes or apart from 3 minutes could have different characteristics. अब आप जो That is why even twins. Yes, yeah, even twins, B caste Twins, also yeah. for twins. So sun sign और सूर्य की उसमें इतना फर्क है moon sign में. Moon sign is so intricate, so micro study. Sun sign can't even match it. Match it. Wow, so wonderful. So that means वो sun sign match करके जो सारी शादियां हुई थी उनको दोबारा देखना पड़ेगा. I think so. इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं. आई टेल यू, यहाँ बात फेट डिसाइड करने की हो रही है. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए कहा ना, फॉर फन इट्स गुड टू गो बाय. फॉर फन ऑफ कोर्स. या, मुझे अच्छा लगता है. हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी हूँ. यू फील गुड. बट व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ टू डिसाइड अबाउट करियर, when and how I am going to fall sick, right, you know, when I am going to get job, moon sign, I can give you a window of a week about getting a job. Oh wow, yeah, really? I have done that. I have done it is like so accurate. Wow, wonderful. So intricate, so micro and so accurate कि अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो मैं प्राण दशा तक देख सकती हूँ. मतलब अगले क्षण क्या होगा. Nobody does that and one should not do that. One should because not do sometimes it's you know scary. Yeah, it is. But we can go up to that level. प्राण दशा भी निकाली जा सकती है. Absolutely. So it is quite similar with Ayurveda. You know, these experts who read the nadi, they can tell you how many breaths is balance in your life if you continue to go like that. You know, they would tell you that this is not functioning in your body properly. So this is how much, if you do not take care, this is what is going to be the result. So, you know, quite similar there also. Yeah, I have seen Vaidyas, you know, they have been so precision in their diagnosis. Yes. If, just by this. Right. My dadi used to do that. Yeah. My dadi used to do that. You know, she would do this and then she would mumble something inside and then she'll tell my mom that, you know, start giving them this. Otherwise winters में problem होगी. School से छुट्टी दिलानी पड़ेगी. बीमार हो जाएंगे. Cough cold हो जाएगा. You know, like that. So I have myself seen this. True. मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि आयुर्वेद के वैद्यों का जो डायग्नोसिस में प्रिसिशन है, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को मात करता है. Absolutely, the way they read the nadi, मतलब it is just amazing. बस यही एक अच्छी भी बात है कि अगर वो आपकी पथरी को समझ जाएगा, उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी आपकी पथरी से, तो आपको डेट वाइज प्रेडिक्शंस मिल सकते हैं. Yeah, yes. But Dr. Shukla, how important, I think this, I should not be asking this question because you have already answered this, but I think it is extremely important for us then to know the date and time of birth and all of that. I think correctly. Yeah, correctly. Yeah. Correctly. A minute here and a minute there would make a vast difference. I would say 3 to 4 minutes are not going to make much difference, though the divisional charts are going to be changed, but the Lagna horoscope is not going to be changed. Not good. So that will do. That will do, but still, जितना accurate time, उतना accurate prediction. So I think ये सब इसलिए भी lost हो गया because वो जो transition हो रहा था
एजुकेशन सिस्टम का, व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन, देन देयर वाज दिस ट्रांजिशन स्कूल, पहले गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, तो उस ट्रांजिशन में जिस तरीके से हम महीनों को, दिनों को देखते थे और जो कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम में देखते थे, वहां से भी बहुत फर्क पड़ गया। बिकॉज बारिश हुई थी, दिवाली से पहले था, इतना these people would calculate like that, and they would calculate like prayer and all, and when those guys grew up and they wanted और ये सब कैलकुलेट किए जाते थे, right, and then when this calendar year changed, तो वो बीच में बहुत लोगों को नहीं पता होगा उनका क्या डेट है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इंडिया ने अपनी कल्चर को कैसे खोया। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो तो मेरा पूरा जीवन है, बट अदरवाइज आई स्टडीड हिस्ट्री, मेरी पीएचडी हिस्ट्री में है। And my research is in astrology also. So otherwise also I am a keen observer of Indian heritage, I would say. Not only astrology, but otherwise also. So because I am a student of history, as so far as my education goes, तो मैंने मैकाले की एक थियरी पढ़ी थी when he came India, visited all over India, and what he has written in his book, that I have seen that this breed is very strong by nature, by mental strength and physical strength as well. If you, I mean, उसने अपने fellow Englishman को लिखा था कि if you want to rule them, you can do only one thing. आप इनको केवल एक तरह से हरा सकते हैं, show the language supremacy to them. Yeah, this is what happened. Talk to them in English when they are not understanding what they are saying, and they were always in a very very demonstrative tone. So एक आम हिंदुस्तानी को एक डर लगा कि ये बोल क्या रहे हैं, ये तो एलियन है, कोई हमसे सुपीरियर ब्रीड है, गोरा है, कुछ और बोल रहा है। And we all were behind them, basically, I would say. Absolutely. That's how Ayurveda was also lost. That's how तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि आपको अच्छी इंग्लिश आना जरूरी है, हिंदी तो गई भाड़ में। आप संस्कृत बोलते हैं तो आप कहीं के नहीं है, आपको इंग्लिश में ही आज आपको आज ये दशा है समाज की, ज्योतिष की, कि आपको ये कहने में बड़ा हक तलफी लगती है कि यू आर अ बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा। Absolutely, yeah. And this is what has ruined India. The essence of India is killed. Absolutely, I agree with you completely. I think this is the time we should try and revive. Yeah. So yeah. So here we are doing our bit. Yes, I think so. Absolutely. So how easy, Dr. Shukla, it is to identify your moon signs, or how spices play a role in the signs or in our behavior and all? It's very easy to identify what is your moon sign. आप अपने हॉरोस्कोप को उठाइए और उसमें कुछ नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि आपकी जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है या मून लिखा हुआ है, उस जगह पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। Okay. If it is number 1, you have Aries moon sign. If it is 2, you are Taurus or Vrishab. If it is 3, it is Gemini or Mithun. तो इतना इजी है जानना, बस अपनी हॉरोस्कोप को खोलिए, अगर नंबर 1 है तो मेष और नंबर 12 है तो मीन, लाइक क्रम से, इट्स सीक्वेंस वाइज। Yes, find it out. It's so simple. But sun sign would be different and moon sign would be different. Because Western zodiac is little ahead of us. सन साइन के हिसाब से मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, लेकिन मेरी जन्म पत्रिका में जो सूर्य है वो सेजिटेरियस में है। दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग अबाउट हिंदू एस्ट्रोलॉजी। हिंदू जोडियाक इज अ लिटिल बिहाइंड, सो इसीलिए इसका प्रिसीशन और ये सब ज्यादा अच्छा है, और ये अभी इसमें समझाना आप लोगों के लिए कॉमन मैन को मुश्किल होगा। बट आपका सन साइन और मून साइन मतलब अलग अलग ही होता है, और आपका जो सन साइन होता है
उस हिसाब से आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य नहीं बैठा होता। So it's quite, okay. yeah, it's quite technical. Quite, yeah. Yeah, let's Absolutely. not go into it, I would say. Yes. But हाँ, नंबर देखिए और अपना चंद्रमा जहां लिखा है और अपना मून साइन जान जाइए। जान जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक और भी हम बचपन से देखते आए हैं कि अगर आपका सन साइन, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा सन साइन कैंसर है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बट मेरा नाम पी से शुरू हो रहा है, तो वो हिंदी राशि के हिसाब से कर्क है, तो मून साइन इनसे भी अलग है? नहीं नहीं, यही है। पर क्या अच्छा। होता है कि अगर आपका पी से है, अगर आपका राशि का नाम जो पंडित जी ने निकाला था वो भी पी से ही था, इफ दैट इज प्रेरणा, देन योर Right. राशि इज कर्क। बट हो सकता है पंडित जी ने Okay. कुछ नाम निकाला हो और आपने अपना कोई और नाम रख लिया हो। राइट। या Right. ये सब सारी प्रैक्टिसेस हैं। सबसे सिंपल Practices तरीका हैं। है कि अपना मून देखिए और उस हिसाब से समझ जाइए आपका मून साइन क्या है। क्या है? परफेक्ट, नाम दैट इज वगैरह इजी पर टू मत डू। जाइए। यस, No, of course. For a layman, that is easy to do. And of दैट्स course, इजी, for deep understanding, we can come to you ऑफ anytime. कोर्स, एनी टाइम। Right, right. So, is it possible to kind of associate spices to your moon signs also? Yes, yes. I would say Okay. spices could be connected with your moon sign, with your even numbers, date of birth के Okay. हिसाब से भी। Okay. ये एक कॉमन चीज है कि जो एक स्पाइस सूर्य से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ब्लैक पेपर इज कनेक्टेड विथ सन, इफ आई से दैट, Right. so whosoever has Leo sun sign or Leo moon sign, you both can use that. Oh, okay. Because for both the rashis, the ruler is sun. Whether it is sun sign or moon sign, you can use it. So, Even number 1 in numerology, who has number 1 as a birth number, can use this spice, because again, that number is ruled by sun. oh, okay. So it's a very common, I would say, understanding कि इवन आप नंबर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कर सकते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर देखा जाए तो ब्लैक पेपर एक हीटिंग स्पाइस है, राइट? कार्डेमम, सो हीट, सिनेमन, जितने भी हीटिंग स्पाइस हैं ये सूर्य से रूल्ड हैं। और अगर आपकी सूर्य से रूल्ड मून साइन है, यानी कि अगर आप सिंह राशि के हैं, राइट, या फिर आप लियो सन साइन के हैं, राइट, या आप नंबर 1 से रूल्ड हैं, राइट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दैट विल इंक्रीज योर इनर स्ट्रेंथ एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ऑरा ऑल्सो। वाओ, सो वंडरफुल। सो अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें, मतलब आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इफ यू फॉल इन नंबर 1, आप सन साइन के अंडर आते हैं, मून साइन में भी आप लियो के अंडर आते हैं, सन में भी लियो के अंडर आते हैं, विच इज एनर्जी, विच इज पावर, विच इज शेर, सिंह। और ब्लैक पेपर एनर्जी गिविंग ही होता है। सो अगर आपकी बॉडी में लॉस ऑफ एनर्जी है, तब आप इसका यूटिलाइज करें आयुर्वेदा के हिसाब से, तो आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, एनर्जी मिलेगी। सो ये all of this is so related, and and that's why अगर हम नॉर्मल जिंदगी में देखें कि काली मिर्च कब देते हैं, when person is feeling low, so खिचड़ी में सिर्फ नमक और काली मिर्च पड़ता है, because इंसान को एनर्जी की जरूरत है। salt and pepper, because उसको एनर्जी चाहिए। he'll not be able to digest that bitter or pungent or astringent kind of spices. He would need some spice that is going to give him strength and energy. That's how black pepper. That is it. Wow, so good, Dr. Shukla, so good, wonderful. So ये तो हुआ लियो के बारे में। ये आपके लिए बेसिकली सात्विक एनर्जी बढ़ाते हैं, सात्विक एनर्जी जो सूर्य को चाहिए होती है। तो अगर आपका नंबर 1 है, या फिर आप
मून साइन आपका सिंह राशि के हैं या फिर आप लियो सन साइन के हैं, all three people can start using these things. Cinnamon, black pepper, I would say cardamom, बड़ी वाली जो होती है, तो वो भी right, ये आप right. शुरू कर सकते हैं, and they are going to increase sattvic energy within your body, and that is going to reflect in your aura also, because sun is all about aura also. Aura, absolutely. So now I will come by planets. So now I am coming to Sure. moon. Sure. तो अगर आपकी कर्क राशि है, यानी कि कैंसर मून साइन है या कैंसर सन साइन है, या नंबर 2 आपका रूलिंग नंबर है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या 11 है, 29 है, जो भी है, तो आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को, जो हर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो योर मेंटल पीस इज रिस्टोर्ड, योर थिंकिंग एंड विजन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रांग. Okay. तो नंबर 1 तो ये होता है मून के लिए कि आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को वाटर ज्यादा पीना चाहिए. राइट, ऑफ कोर्स एनर्जी ज्यादा चाहिए, हीटेड फूड ज्यादा खाएंगे तो यू हैव टू काइंड ऑफ बैलेंस इट विद, और दूसरा टू कीप योरसेल्फ. यस, जो आपकी हर्ब्स हैं उनमें सबसे पहले शतावरी, व्हाइट मूसली, ये सब अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपके लिए बहुत शारीरिक, आपका जो बैलेंस है, जो हार्ट एंड माइंड का कनेक्शन है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट. सो शतावरी एक इस तरीके की हर्ब है जो आपका पिता और कफा को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करती है. दैट इज व्हाई इट इज फॉर मून. दैट इज व्हाई इट इज फॉर मून. Yes, that is it. So connection तो आपको ढूंढना ही नहीं है. It is so well connected, I would say. Absolutely, so well connected. So now I will come to Mars. अगर आपकी मार्स की 2 रूलिंग साइंस होते हैं, नंबर 1 इज एरीज एंड नंबर 2 इज स्कॉर्पियो. तो अगर आपका एरीज मून साइन है, सन साइन है, या फिर आपका स्कॉर्पियो सन साइन है या फिर मून साइन है, तो आपका क्या होगा कि आप मंगल से रूल्ड हैं बेसिकली. ओके. और अगर आपका 9 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, अब आपको क्या लेना, अगेन जो सूर्य और मार्स की एनर्जी एक जैसी है, दे आर फायरी प्लैनेट्स, दे आर वेरी फायरी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स. तो सेम है, ज्यादातर चीजें वही रहेंगी. सिनेमन, अश्वगंधा, गूगल, गार्लिक, हींग, ये जो हिंगाष्टक होता है, हिंगाष्टक की गोलियां, और ये मार्स वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है. खास करके जिनका स्कॉर्पियो मून साइन हो, उनको हींग का प्रयोग जरूर करना चाहिए. पाचन क्रिया और सब कुछ, जठराग्नि और ये सब बहुत बढ़िया रहती है. ऑफ कोर्स. सो वही डाइजेशन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो ये वाले सारे प्लैनेट्स हैं. राइट, ऑफ कोर्स. सो एंड हाउस में जो एलोवेरा है, ये भी मंगल के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं. कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ये कूल, क्योंकि बहुत फायरी है. अगर बहुत स्ट्रांग है मंगल तो थोड़ा एलो से शांत होता है. तो इसे यस, तो ये बैलेंसिंग एनर्जी के लिए एलो का सेवन भी किया जा सकता है. और डॉक्टर, आप अपना मून साइन का नंबर कैसे निकालेंगे? इज इट जस्ट योर डेट? Like if I'm born on 7, so will it be 7? And if I'm born on 14, will it be 1 plus 4? 5. Or how? Yes. 5. Or you only will take the date of birth, or you'll add the month and the year? No. For that, because that is called, वो डेस्टिनी नंबर है, जब आप सब कुछ कर लेते हैं, ऐड करते हैं जो. बट दिस इज योर बर्थ नंबर. सो नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बर्थ नंबर. Birth numbers, right. Now I am coming up to the planet Mercury. बुध. Okay. ये ज़ोडिएक की 2 राशियां रूल करता है. They are Gemini and Virgo. Right. मिथुन एंड कन्या. अगर आपकी कन्या राशि है, अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपका वर्गो सन साइन है, जेमिनाई सन साइन है,
तो आप मरकरी से रूल्ड हैं। एंड इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज नंबर 5, इट इज 1 4 अगेन 5 नंबर 5, राइट। सो ये आप ऐसे लोग बुध से रूल्ड हैं। और आपके लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माइंड, बिकॉज मरकरी इज IQ, ऑल अबाउट IQ। तो अगर आप IQ तो आपके पास अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास ना मतलब इम्पल्सिवनेस है और आप IQ को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो अच्छा नहीं रहता है। यू नो, एब्सोल्युटली। इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, समय पर इंटेलिजेंस यूज करना जरूरी होता है। सो मरकरी से जो रूल्ड लोग हैं उनके लिए भृंगराज, हाँ, दिमाग को ठंडा रखने के लिए। जटामानसी, मिंट, एब्सोल्युटली। पुदीना, बेसिल, तुलसी जो होती है, तुलसी। क्योंकि बुध जो है विष्णु से कनेक्टेड है। और विष्णु और तुलसी का कनेक्शन आप इंडियन सब जानते हैं, यहां पर अभी मैं नहीं बताऊंगी, किसी दिन डिस्कस करूंगी। सो तुलसी का यूज मिथुन यानी कि जेमिनाई और वर्गो वालों को करना चाहिए, नंबर 5 वालों को भी करना चाहिए। योर विजन इज क्लियर, योर माइंड इज कूल। और आपके लिए जो थाइम होती है, एक हर्ब थाइम, इसका भी अगर आप ऑयल मिलता है और आप इससे अपना मालिश करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा मेंटल स्टेट रहता है। मेंटल स्टेट। यस, तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ डॉक्टर शुक्ला, ये देखिए, जितने भी अभी तक आपने बताए उनमें एक हर्ब तो उसकी किसी की हॉटनेस को कूल डाउन करने के लिए, किसी की कूलनेस को एनहांस करने के लिए, एनर्जी देने के लिए ये है। साथ में एक एक त्रैदोषिक हर्ब भी है, चाहे वो कार्डमम है या वो भृंगराज है या तुलसी है, जो तीनों दोषों को बैलेंस करती है। सो हाँ, किसी भी तरीके की प्रकृति का इंसान होगा, उसके साथ साथ अगर उसको अपना मून साइन पता है तो वो आराम से बैलेंस कर सकता है। बिल्कुल, वाओ। बिल्कुल। और ये बहुत इजी मेथड है एनर्जी बैलेंस करने का। मतलब इसमें आपको किसी ज्योतिषी से भी नहीं पूछना है, एब्सोल्युटली, just know your moon sign, yeah, and get the result. Now I am coming up to Jupiter और बृहस्पति, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, गुरु, बृहस्पति या जुपिटर। इसके लिए क्या है कि देखिए, जुपिटर जो है वो जीव तत्व है। आपके अंदर जितनी भी जीवनी शक्ति है वो जुपिटर से आती है। राइट। तो आपको इनको एनहांस करना है। अश्वगंधा मिल्क के साथ लीजिए। जितना भी ज्यादा आप घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, यू नो, वॉलनट्स, राइट, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, नट्स बेसिकली नट्स। तो ये किस किस को खाने हैं? जुपिटर की 2 राशियां हैं बेसिकली। नंबर 1 इज सेजिटेरियस एंड नंबर 2 इज पाइसेस। धनु और मीन राशि वाले लोग, या सेजिटेरियस एंड पाइसेस सन साइन वाले लोग, राइट। और नंबर में नंबर 3 जिनका है वो बृहस्पति से रूल्ड होते हैं। राइट। सो आपने वो सारी चीजें बताई डॉक्टर, जो लास्ट टाइम आपने बताया था कि जुपिटर वाले लोगों को, मतलब जिनको अपना जुपिटर एनहांस करना है, उन्हें दान और कर्म अच्छे करने चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। सो और जो आज आप बता रही हैं, ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, यू नो, लग्जरी से। घी मक्खन आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आप जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ज्यादा वही वापस आता है ना जो आप दान करते हैं। and Jupiter is all about expansion and abundance also. तो आप अपनी शारीरिक ताकत को जितना या जीवनी शक्ति को जितना बढ़ाते हैं उतना ही आप जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। शारीरिक ताकत, और इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल पावर, इट इज ऑल अबाउट जीवनी शक्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि विल पावर भी इसी से इंक्रीज होती। तो अगर आपकी शारीरिक ताकत अच्छी होती तो जो लोग भी इससे रूल्ड हैं वो उनको नट्स वगैरह अच्छे खाने चाहिए, और आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है तो बृहस्पति अच्छा। सीसम सीड्स, तिल भी अच्छे होते हैं, व्हाइट तिल खा सकते हैं बृहस्पति वाले लोग। सेफ्रन,
ओके, ये बहुत अच्छा है बृहस्पति बहुत। को। केसर, राइट। केसर को आप दूध में पीजिए, जुपिटर इज हाईली प्लीज्ड। ओके। नाउ आई विल कम टू वीनस और शुक्र। तो राइट। शुक्र जो है, ये शुक्र का नाम सुनते ही लग्जरी, आर्ट और ये सारी चीजें आपको समझ आने लगती है। इट्स ऑल अबाउट राइट। ब्यूटी, लग्जरी, आर्ट, राइट। सुंदरता जो राइट। होती है। सो जो लोग भी, जिनकी भी टॉरस या फिर लीब्रा, हम्म। वृषभ या तुला राशि है, हम्म। या नंबर 6 उनका बर्थ नंबर है, यानी वो 6 तारीख को पैदा है या वो 24 तारीख को पैदा है, तो उनके लिए राइट। वीनस को स्ट्रेंथ देना बहुत अच्छा होता है। क्या ओके। कर सकते हैं आप? रोज, लिली, शतावरी, रोज और लिली वगैरह का, जैस्मिन, इनके फ्लेवर्स, इनके फ्रेग्रेंसेस को आप यूज कीजिए। इनकी आप चाय वगैरह में भी इनको यूज कर सकते हैं, इन फ्रेग्रेंसेस को। दे आर गोइंग टू राइट। इंक्रीज द स्टैमिना एंड द एनर्जी ऑफ वीनस। और शतावरी जी, राइट। देखिए चंद्रमा के लिए जो बातें हैं वही कुछ चीजें इससे कनेक्ट करती हैं, शुक्र से। शतावरी भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। एंड राइट। सो अगर एक आंवला, आंवला is very good for Taurus and Libra people. राइट, सो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम जाएं, ये जो चीजें आपने बोली हैं ये सारी प्रिस्क्राइब की जाती हैं पीने के लिए, खाने के लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए। सो खूबसूरती जो माना जाता है कि औरतों को भगवान का गिफ्ट है और उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एनहांस कर सकते हैं। और हम जो इतना एंटी एजिंग सब करते रहते हैं, ये सारी चीजें, यही सारे प्रोडक्ट्स यूज करने से, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी से देखें या आयुर्वेदा से देखें। सो आप रोज ग्रीन टी पी सकते हैं स्किन एनहांस करने के लिए। आंवला, शतावरी, आंवला, बाल और विटामिन सी, बाल एब्सोल्युटली। Shatavari, so very wonderful for women, gives them inner strength. Yes. मतलब after a period of time when the bones started becoming brittle, you lose calcium from your Yes. body. That time you have Shatavari. It is such an amazing thing provided by nature, and और उसको आप अपने मून साइन से मैच कर ले तो वंडरफुल। That's it. Absolutely. देखिए, अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है किस तरह से हम आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ रख रहे हैं। एंड दे आर ब्यूटीफुली कनेक्टेड विद ईच अदर। कनेक्टेड, या। सो नाउ अब हमारा एक ऐसा प्लेनेट जो सब लोग उससे डरते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्लेनेट है, दैट इज सैटर्न और शनि। शनि ज़ोडिएक की टू साइंस को रूल करता है। वन इज कैप्रिकॉर्न, अनदर वन इज एक्वेरियस। ओके। मकर और कुंभ राशि के लोग जो है, जिनका मून साइन मकर है या कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, और नंबर 8 उनका बर्थ नंबर है। ओके। तो ऐसे लोगों को क्या यूज करना चाहिए? राइट। सबसे पहले त्रिफला। ओके। अगेन अ त्रैदोषिक हर्ब। यस, एंड इट cleanses your all the waste from your body. Yes. So that is what is the work of Saturn. आपको आपके टॉक्सिन्स निकालना, अपनी साढ़े साथी में आकर भी वो आपके जीवन से आपके टॉक्सिन्स को ही दूर करता है, आपकी कमियों को दूर करता है। तो हर्ब्स में त्रिफला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शनि के लिए। नंबर 8 वाले लोगों को त्रिफला जरूर खाना चाहिए। शिलाजीत, अश्वगंधा, ये भी आप ले सकते हैं, पर सबसे अच्छा होता है त्रिफला। त्रिफला बेस्ट है। राइट। अगर आप ये लेते हैं तो आपका, देखिए आपका आयुर्वेद जो कहता है ना, पाचन तंत्र अच्छा रखना, हमने अभी जो बातें की हैं वो बेसिकली आपके पाचन तंत्र पर ही ज्यादा की हैं। एब्सोल्युटली। और ये जब आपका ठीक रहता है तो आपका ऑरा अपने आप ना बेहतर होने लगता है, चेहरे पे चमक अपने आप आने लगती है। बिल्कुल। बैलेंस, जो आयुर्वेदा हमें बैलेंस सिखाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरू होता है।
That's it. जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो माइंड बॉडी सोल आप कितना भी मेहनत कर लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम रहेगी अलाइनमेंट ही नहीं आ रहेगी, पाता, अलाइनमेंट नहीं आएगा। ऑफ एंड यू कोर्स, नो दो ऑफ जो, कोर्स। और ये जो आपकी एरोमाज है उसमें सेडार और जूनिपर, ये दो एरोमाज जो होते हैं ये शनि को काफी कूल करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो इनका ऑयल आप यूज कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी में कर राइट, सकते हैं इस चीज को। सो जो राइट। लोग भी केप्रिकॉन या एक्वेरियस के हैं उनको इस तरह की चीजों को यूज करना चाहिए। और आपकी राइट। कई बार होता है कि आपका अगर बॉडी वेस्ट अच्छे से नहीं आ रहा है बाहर, तो फिर शनि काफी कष्ट देने लगता है। सो आई वुड से अगेन, आई वुड से यूज त्रिफला। दिस इज द मोस्ट। डॉक्टर, ये साढ़े सत्ती के बारे में भी काफी सुनने में आया है, और सुन के डर ही लगता है कि ओ अब क्या होने वाला है, यू नो these next 7.5 years are going to be difficult. So आपने बोला कि सन को 12 महीने लगते हैं वापस आने में, मून विल स्टे फॉर 2.5 years. So ये शनि 2.5 days, 7.5 2.5 days, राइट, 2.5 days. तो ये शनि और 7.5 ये कहीं बीच में कुछ है? इज दैट अ साइकिल और व्हाट इट इज? शनि का जो साइकिल मैंने कहा ना 30 साल लगाता है, वो लगभग राइट, 29-30 साल उसको एक पूरा साइकिल लेने में लगते हैं जोडियाक के, यानी राइट, साइंस को क्रॉस करने में, क्रॉस करने में, ठीक है। राइट। सो क्या होता है कि whenever Saturn crosses your moon sign, तो आप, because it is a period of 7.5 years, so राइट, when this Saturn is behind your moon sign, then you are entering into Sadesati, then it will Okay. come on your moon sign, then you are in the prime period or the middle leg of Sadesati, and when it goes Right. ahead of your moon sign, it is the last leg of Sadesati. So when moon is impacted by Saturn, that is basically Saturn's Sadesati. 7.5. Oh, very interesting. Yeah. Yeah, thank you. Okay. So now two most I would say again discussed, और आपके ज्योतिषियों ने सबसे ज्यादा इनसे डराया हुआ है, 2 ग्रहों से, राहु और केतु, और काल सर्प और ये सारी बातें भी इन्हीं से विचारों से आती हैं। राइट। तो इनके लिए क्या है कि इनकी एनर्जी कैसी है मैं आपको बताऊंगी। राहु जो है वो एक बहुत सटल फोर्स है, ओके, you know, because it is not a body, it's a shadow. ओके, And if इनकी कोई राशि नहीं होती, because they are shadow planets, राइट, तो कोई राशि नहीं है, लेकिन राइट, whoever is ruled by number 4 can do this. ओके, या फिर किसी की हॉरोस्कोप में अगर कभी किसी ज्योतिषी ने कहा है कि राहु अच्छा नहीं है या परेशान कर रहा है आपको, तो वो लोग भी ये कर सकते हैं। राहु की जो फोर्स है वो शरीर पर नहीं, आपके मस्तिष्क, ब्रेन पर काम करती है। ओके, बिकॉज शैडो है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी, नहीं करती, इनडायरेक्टली ये आपके आसपास रहता है, यू नो, इट कास्ट्स अ शैडो ओवर योर माइंड। तो इसके लिए क्या है कि एरोमा थेरेपी सबसे अच्छी होती है। यहाँ पर खाने के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी राहु वालों के लिए, एरोमा थेरेपी। एग्जैक्टली, दैट इज आई वुड से कैम्फर, सैंडलवुड, सेज, बेबेरी, ये जो चीजें हैं जिनसे आपकी साइकी क्लियर होती है, इनका आप कैम्फर का आप अपने कमरे में धुआं कर सकते हैं, कैम्फर को जला सकते हैं, यू नो, सो यू आर managing the energy of Rahu or the air. If the air is pure around you, you know, you are better off with Rahu. So thinking back, Dr. Shukla, कैम्फर घर में दादी कहा करती थी दिन में एक बार जरूर जलाना है, अपने आप जलाना है। बात बिल्कुल बेसलेस थी ही नहीं, एब्सोल्युटली। पूजा की आरती में हमेशा कपूर जलाया जाता है। क्यों? अगर आपने सुबह नहीं जलाया तो शाम को जलाएंगे। नहीं, देखिए क्यों,
इसलिए क्योंकि उस वक्त जितने लोग हैं उस पूजा में उपस्थित, किसी का भी, जिसको कहते हैं ना, साइकी गड़बड़ ना हो, ऑल शुड बी ऑन अ Absolutely. पॉजिटिव ट्रैक ऑफ माइंड। कपूर का जलाया जाता था। सो राहु इज सेटल फॉर एवरीवन आउट देयर। एवरीवन, एब्सोल्युटली। एंड हमारे घर में एक बहुत छोटी सी चीज करी जाती थी। सुबह घर से निकलने से पहले, जो भी आप मंदिर में जा रहे हैं, तो दादी हमें एक चंदन का टीका लगाती थी। वो चंदन को घिस के वो एक टीका यहाँ पर और यहाँ पर लगाती थी। सो अगर हम उसको आज की आपकी इस कॉन्वर्जेशन के या You could hear me? या Oh, okay. Great. I lost you there for a minute and I was just wondering whether we'll be able to save this live or no. नो या Okay. So, चंदन का एक टीका लगाया जाता था मस्तिष्क पे, again that aroma, and then on the throat, so that then you are cool here. So we have a question. We have a question who somebody is asking. Kailash is asking. Is kapoor on hot plate fuming okay if you have to do it? क्या आप कपूर को hot plate पे जला सकते हैं या आपको दिए में ही जलाना जरूरी? बिल्कुल जला सकते हैं, बिकॉज हमें इससे इसके एरोमा से मतलब है. So Right. if aroma is dispersed, yes, why not? You can Right. use electric that also, burner or whatever. You can use that. Okay. You know, Wonderful, अब मैं आपको wonderful. एक चंदन की बात जो आपने बताई थी, उसका मैं बताती हूँ कि जो प्रॉपर चंदन होता है, आपने जिनको भी साधु संतों को देखा है, वो चंदन का एक तिलक लगाते हैं पहले, और उसके बाद लाल बिंदी उसके ऊपर लगाते हैं. Right. फाइन. सो ये क्या है? राहु को शांत करना और सूर्य को जागृत करना. रोशनी सूर्य आएगी तो मैंने शैडो कहा ना, अपने आप हटेगी. यस, सनलाइट आते ही शैडो का इधर उधर हो जाना है, आपका माइंड जागृत हो जाता है. तो कोई भी चीज जो ये बनाते हैं कि हम सोचे वो डिजाइन बनाए हुए, नहीं, बहुत टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक बात है Absolutely. कि सूर्य आप अपने पहले शांत किया और उसके बाद फिर आपने लाल टीका उसके ऊपर लगाया, यानी यू हैव मेलोड डाउन राहु एंड यू आर एनहांसिंग, ट्राइंग टू एनहांस सन. रेड सिंदूर लगाते हैं. Yeah. सो इट इज ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग एनर्जी ऑफ योर माइंड. Absolutely. That's why my nani always used to say कि बिंदी लगाने से पहले चंदन का लगा लिया करो, उसके ऊपर लाल बिंदी लगाया करो. This is the science behind it. दिस इज द साइंस बिहाइंड. This is अब चलिए बात होगी केतु की. केतु अगेन, Right. एज आई सेड, ये शेडो shadow प्लैनेट्स है, planet. शेडो प्लैनेट्स है. Right. लेकिन आपका टू गिव यू बेटर परसेप्शन, टू गिव यू बेटर सेंस ऑफ रिसर्च, to give you spirituality, I would say. Right. Ketu is very important planet because it is again all about who am I. Ketu asks only one thing because it does not have head, it is only body without head. So it says, who am I? That is why it, take you to the path of spirituality, क्योंकि वहां भी आप यही खोजते हैं, मैं कौन हूं. Who am I? What is my purpose? So केतु भी एक सटल एनर्जी है. और केतु के लिए क्या है कि जो चीजें जुपिटर के लिए, जैसे कि जुपिटर, शनि और राहु, इन सब का एक मिक्सचर केतु के लिए अच्छा हो जाता है. सो आई वुड से सेडार, कैम्फर इज वेरी गुड फॉर केतु ऑल्सो. आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जब केतु बहुत स्ट्रांग होता है किसी का हॉरोस्कोप में, तो उसको स्किन प्रॉब्लम्स होती है. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका केतु नेगेटिव है. पर केतु अगर बहुत पावरफुल होता है, देन यू हैव स्किन एलर्जीज, एक्जिमास, रैशेस. तो अगर आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिलाकर लगाते हैं अपनी स्किन पर,
ये आपने सबसे सुना होगा, हमारे दादी नानी ने बताया। Now I know the reason when I have studied astrology. Right, right. Why this? By this. So Yeah. Ketu is pacified and your skin is better. So Kapoor, camphor is good for Rahu and Ketu both. So if you are number Right. 7 person, 7 Right. नंबर आपका जन्म है, तो फिर Right. आपके लिए कैम्फर सबसे अच्छा है। वाइल्ड जिंजर Right. का प्रयोग आपके लिए अच्छा हो सकता है। सेडार का अरोमा अच्छा हो सकता है। और भृंगराज, अगर स्किन के लिए मैं कहूंगी भृंगराज ऑयल को भी लगाया जा सकता है। और अदरवाइज Right. आप सर में और अपने मालिश वगैरह तो भृंगराज के तेल की कर ही सकते हैं। इफ करना यू ही आर चाहिए. अ Of course. पर्सन हु इज रूल्ड बाय केतु, नंबर 7 पीपल, Right. तो ये आपके लिए प्लैनेट से रिलेटेड हर्ब्स हैं। और अगर आप इनको अपने जीवन में लाते हैं तो बिना किसी नुकसान के कुछ ना कुछ बेहतर हेल्थ, बेहतर मेंटल दिस थिंग, और आई वुड से बेटर मेंटल स्टेट के साथ साथ परसेप्शन, ऑरा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। Absolutely. और इन सारे herbs का there is no side effect. Even if Not you at do all. not belong to that number or do not belong to that moon sign, even then these Then herbs also. are beneficial for your body, you know. और I think जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हर एक इंसान में 3 दोष होते हैं. आई एम श्योर कि एस्ट्रोलॉजी में भी हर एक इंसान के कभी ना कभी किसी ना किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो उसके लाइफ साइकिल में रहता ही होगा. रहता ही Right. है हमेशा। Absolutely. So even if it is, आपने जैसे बोला कैम्फर, अगर आपके नहीं भी है नंबर मून तो भी साइन आप के कर नंबर सकते में, हैं, तो भी तो आप कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं. देखिए, बिल्कुल. जैसे भृंगराज यूज कर सर्दी में हम हीट गिविंग चीजों को प्रेफर करते हैं कि चाय में अदरक Right. डाल दो, ये डाल दो, सिनेमन Right. डाल दो, क्योंकि सूर्य की तेजी उस वक्त कम हो रही होती है ना। Right. सन इज नॉट दैट प्रोमिनेंट इन द ज़ोडिएक। Zodiac. Right. हल्का हो जाता है, मध्यम सूर्य हो जाता है, सूर्य की तेजी उतनी नहीं होती। तो हर Right. कोई ले सकता है क्योंकि सन की एनर्जी सबको चाहिए उस वक्त। सबको चाहिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वही जैसे आप जिंजर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जब आयुर्वेद ने ये साइंस डिजाइन की थी तब और आज के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है. तब इसको एक हीट जनरेशन कहा जाता था. अगस्त से आप लेना शुरू करेंगे विंटर्स के लिए अपनी Yes. बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए. बट आज टुडे इट इज एन ऑल राउंडर बिकॉज there's so much pollution. You always need to kind of keep your respiratory tract clean. So ginger is all rounder for Ayurveda. Ginger is all rounder for astrology. So that is why it is the most common used herb. So Yeah. अगर लोग, if people are off onion and garlic, if they believe कि हमारे को नहीं खाना है अपने रिलीजन के हिसाब से, still ginger is allowed. Ginger Yeah. is there. Still. बिल्कुल। Yeah. So we Because just have to. I always feel प्रेरणा कि ग्रहों की एनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमको हर एनर्जी चाहिए। Of course. तो बेसिकली ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप इनको बिना डरे हर कोई ले सकता है। आई मीन इट कुड बी Absolutely. यूनिवर्सल यूज, पर बिकॉज हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को जोड़ रहे हैं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंटेन और एस्टेब्लिश कि अगर आप इन हब्स को जो स्पेशली डिजाइन फॉर यू हैं लेते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। Of course. This is so good, Dr. Shukla. मतलब I'm so impressed and I'm so happy that we are able to kind of establish this kind of a connection which was lost. We are kind of, I'm sure our viewers would also have benefited from this. I've made a note of all this. I'm going to share this with our viewers on the post so that even if they've missed it, they'll be able to kind of know. Yeah, they'll be able to know about it. So I'm going to do that. And before, we are left with just about 5 minutes. I want to save this live. I do not want to kind of want Instagram to eat it. So quickly, I would, it is such a lot of knowledge. It's a lot of time and effort that you have
taken out, and this is a knowledge that we want to preserve. This is the knowledge that we want to share. So it is very important that, all of that we are doing, we are able to save. So quickly, I would like to thank you. And I would like to I would like to share with our viewers that we have some more episodes planned, and we are going to share more about the festivals that are upcoming, how you can benefit with the right way of eating, behaving, all of those things according to astrology and Ayurveda. We are and we are always open from the viewers if they have any questions, if they have any queries, if they want us to answer anything, and they can always reach. Thank you, Dilli Wali Thakur girl. So, and we are always there. They can reach you, me, anybody, DM us, and we would be happy to answer. Yeah, of course. I would love to do that. Right. On that note, Dr. Richa, I'll take your leave. Thank you so much for your time today. Yeah. Thank you. Bye-bye. See you. Bye.